Introducing Educume's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now today we are going to solve some prelims related questions based on art and culture, and we will see how the questions came in UPSC prelims 2023. So first we will read out the question for you, then you have to attempt the question on your own, try to answer it, and then we will see the right option and also the information that was required to answer that question. Now starting the first question is, with reference to ancient India, consider the following statement. Now this question came in UPSC prelims 2023 and this was a relatively easier question compared to the other questions. So first try to read these statements carefully and try to attempt on your own. If you have attempted UPSC prelims 2023 then it's okay. If you have not, then still try to answer this question. Okay. Now the first statement is, the concept of stupa is Buddhist in origin. The second statement is, stupa were generally a repository of relics. And third is, stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. How many of the above statements given above are correct? Only 1, only 2, all 3 and none. Now you have seen that the options have been totally changed in UPSC prelims 2023. You are going to see these options in the future also, only 1, only 2, all 3, none. अब देखिए इस ऑप्शन से प्रॉब्लम क्या होता है, पहले होता था जो ऑप्शंस जैसे 1 ओनली, 1 and 2 ओनली या 1 and 3 ओनली, तो उसमें इफ यू नो दैट वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शंस को. लेकिन जब ओनली 1 और ओनली 2 या ऑल 3 इस तरह के ऑप्शंस आते हैं तो आपका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कंसेप्ट ऑफ स्तूपा जो है वो बुद्धिस्ट ऑरिजिन का है या उससे पहले का है, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद कुछ बेसिक्स हैं जैसे कि स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, इसके बारे में भी पता होना चाहिए. तो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके आप इन सारे ऑप्शंस को टैकल कर पाएंगे. ठीक है. तो इसी कारण परेशान नहीं होना है, अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, अपने इंफॉर्मेशन बेस को थोड़ा सा अच्छा करें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और गेसिंग करने का कोशिश करें, इंटेलिजेंट गेसिंग, तब जाके आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे डिफिकल्टी में तो वी विल कैटेगराइज इन L2 लेवल, बिकॉज इससे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स में देखने को मिले हैं. वी विल सी लेटर ऑन ऑल्सो. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको एक तरह से बोल सकते हैं इजी हैं कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस, और ये बनने चाहिए थे आपके प्रीलिम्स में. ठीक है. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है ओनली 2. Now the first statement, the concept of stupa is Buddhist in origin. Now this is wrong. अगर आपने आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है, आप जो वैदिक टाइम्स अगर आपने पढ़ा है तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि उसका जो मेंशन है वो ऋग्वेदा में भी है, अथर्ववेदा में भी है, वैदिक पीरियड में भी उसका जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसको देखने को मिला है इस तरह का. और स्तूपा अगर आप बेसिकली बोलेंगे तो इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मीनिंग हीप. ठीक है. और मतलब बेसिकली कुछ ऐसा हीप टाइप का बना हुआ कुछ स्ट्रक्चर है, उसको जो है हम लोग जो है संस्कृत में भी इसको बोलते हैं. ठीक है. बुद्धिज्म में इसको कैसे यूज किया गया है, इट इज माउंट शेप का होता है, कंटेनिंग रेलिक्स ऑफ बुद्धा मॉन्क्स. ठीक है, ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स. तो यहां पर पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि ये प्री बुद्धिस्ट जो है पीरियड में भी इसके बारे में जिक्र है, तो ऐसा नहीं है कि ये बुद्धिस्ट ऑरिजिन का है. तो अगर आपको इस इंफॉर्मेशन आपको पता था तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो हमने देखा ही कि रेलिक्स को स्टोर करने के लिए जो है एक तरह से रिपोजिटरी की तरह काम करता था स्तूपा. और पाली वर्ड में अगर हम लोग देखेंगे, पाली वर्ड जो बहुत ही बुद्धिज्म में फेमस है, थूपा इज सिमिलर टू टर्म स्तूपा. ठीक है. एक थूपा यूज करते हैं जो वर्ड है दैट इज सिमिलर टू स्तूपा एंड रेफर्स टू अ कोनिकल हीप, पाइल और माउंट एज वेल एज कोनिकल और बेल शेप्ड श्राइन कंटेनिंग अ रेलिक. ठीक है. तो यहां पर जो है सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है. अब देखिए, stupas are regarded as monuments for veneration and have associated with votive and commemorative and offering purposes. देखिए जनरली स्तूपा को अर्ली बुद्धिज्म में क्या होता था कि आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जो है स्टार्टिंग में एज अ आइडल वर्शिप नहीं होता था. ठीक है. जो भी इनिशियल में जो स्तूपास थे उन्हीं को जो है माना जाता था
कि वो जो है क्योंकि वो रेलिक्स कंटेन करते थे गौतम बुद्ध का एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स का, तो एक तरह से लोग जो है वहां पे जाके कॉमेमोरेटिव ऑफरिंग्स करते थे, ठीक है, फॉर सैल्वेशन, ऑब्वियसली अटेन सैल्वेशन। तो स्टार्टिंग में जो है उसको क्या इस तरह से ट्रीट किया गया। लेटर ऑन आपको पता है बुद्धिज्म बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ, इसमें भी डिफरेंट सेक्ट्स आए, हीनयान, महायान, वज्रयान, ठीक है, तो सबका अलग अलग तरीका था वर्शिप करने का। पर इनिशियली जो था, जो स्तूपा को कंसिडर किया जाता था कि यहां पर ही हम लोग जो है ऑफरिंग्स करेंगे और एक तरह से उनको गॉड की तरह कंसिडर किया जाता था, ठीक है। लेकिन अगेन जो था वहां पर उस समय आइडल वर्शिप नहीं होता था, तो एक तरह से आप समझिए कि वही मेन था जिसमें लोग जो है वो वहां पर वर्शिप करते थे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो वेरियस बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट सच एज अवंदन शतकम, महावंदना, इस तरह के टेक्स्ट जो है वो भी कमेमोरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ स्तूपा को बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका यही मतलब था कि स्तूपा में जाके लोग ऑफरिंग्स करते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि यहां पर जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड या बुद्धा से रिलेटेड जो है उनका रिलिक्स है, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल प्लेस है, यहां पर हम वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to ancient South India, Korkai, Pumpuhar and Muchiri were well known as. Now this question also came in UPSC Prelims 2023. तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, A capital cities, B ports, C centers for iron and steel making and D shrines of Jain तीर्थंकरास। तो आपको जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है पोर्ट्स। नाउ दिस क्वेश्चन वाज थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, तो वी विल कैटेगराइज दिस क्वेश्चन इन L3 बिकॉज इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको अंदाज नहीं है, इफ यू हैव नॉट हर्ड अबाउट एनीथिंग अबाउट कोरकई, मुछिरी, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें अगर आपको नहीं पता है तो आपका फिर आप समझ रहे हैं यू हैव टू चूज बिटवीन 4 ऑप्शंस, क्योंकि आप किसी भी ऑप्शन में क्लोज नहीं पहुंच पा रहे, तो फिर आपका जो सही होने का चांस हो जाता है वो 25% हो जाता है और यहां पर रिस्क काफी इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन था तो आप जरूर अटेम्प्ट करें। आपने किसी के बारे में भी कभी सुना है, कोरकई के बारे में सुना है या मुचीरी के बारे में सुना है, तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। नाउ हम लोग इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था। तो कोरकई, पुंफहर एंड मुचेरी वर रिनाउंड पोर्ट्स इन एशियन टाइम्स। अब संगम लिटरेचर में इनके बारे में बताया गया है, सिग्निफिकेंट इनसाइट दिया गया है और बताया गया है कि जो है मतलब ऑब्वियसली उस समय जो अर्बन सेंटर्स थे और जो अर्ली कल्चर्स था उस समय जो है इन पोर्ट्स का काफी सिग्निफिकेंस था। अब हम लोग देखें तो कावेरी पुमपतीनम ऑल्सो नोन एज जो पुमफुहार जो पोर्ट है उसका नाम अल्टरनेटिव नेम्स है, और पुहार वॉज प्राइमरी पोर्ट ऑफ द चोला डायनेस्टी, ठीक है। चोला डायनेस्टी का जो है ये प्राइमरी पोर्ट था और ड्यूरिंग अर्ली हिस्टोरिकल टाइम्स जो है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ होगा, तभी जो है इसका जो है आप बोल सकते हैं रेफरेंस दिया हुआ है इन संगम लिटरेचर, ठीक है। और इसको जो है डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। देखिए यूपीएससी क्या होता है, कभी कभी आपको अल्टरनेटिव नेम्स दे देती है जिसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण अगर आप जब भी पढ़ते हैं किसी चीज के बारे में तो कोशिश करिए कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इवन एनसीईआरटीज में भी जो दिया हुआ है उसको आप कोशिश करिए कि जो है साइड में कहीं लिख लें कि अगर आपको कहीं अल्टरनेटिव नेम्स पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आया तो आप जो है उसको जोड़ पाएं रियल चीज से, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्लासिकल अकाउंट्स रेफर टू इज एट खबेरीज और कमारा, जो है पोमफुआर को जो है वो खबेरीज और कमारा भी कहते हैं, ठीक है। अब कोरकई जो था वो मेजर पांड्या पोर्ट था, वाइल टोंडी एंड मुचिरी वर द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन चेरा किंगडम, ठीक है। तो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन एंशिएंट टाइम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, this question came in UPSC Prelims 2023 and this is a relatively easier question. We will categorize this question in L2 level. हम लोग पहले ही इसकी डिफिकल्टी की बात कर लेते हैं बिकॉज बाकी क्वेश्चंस जो आए थे वो बहुत डिफिकल्ट थे। अगर आपको बेसिक्स पता है अबाउट बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म तो आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते थे। नाउ द क्वेश्चन इज, souls are not only the property of animal and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core beliefs of which one of the following religious sects of ancient India. तो आपको बताना है कि souls are not only the property of animals and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects, ठीक है। तो ये जो है ये किस रिलीजियस सेक्ट में इसको ये माना जाता है कि सोल्स जो है वो एनिमल और प्लांट में ही नहीं सिर्फ रॉक्स और रनिंग वाटर्स में भी होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बुद्धिज्म, बी जैनिज्म, सी शैविज्म एंड डी वैष्णविज्म। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है जैनिज्म। देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगर आपने बुद्धिज्म और जैनिज्म के कोर फिलॉसफी के बारे में पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
जैनिज्म में लोग क्या बिलीव करते हैं? जैनिज्म बिलीव दैट एवरी एटम कंटेन्स अ सोल, ऑल्दो इट इज नॉट कंसिडर्ड अ जीवा सिंस एटम्स लैक सेंस ऑर्गन, बट द सोल इन जैनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड एज बोथ परमानेंट एंड चेंजिंग। नाउ जैनिज्म में बिलीव करते हैं, आपको पता है इसी कारण जो है जैनिज्म, आपको पता है जब भी आप किसी से मिलेंगे तो आप ये देखने को मिलेगा कि वो किसी भी चीज को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं कि उनसे गलती से भी हो, बिकॉज दे बिलीव कि एवरीथिंग हैज अ सोल। तो इसी कारण जो है वो मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में, इवन एवरी एटम कंटेन्स अ सोल। ठीक है, अब जैनिज्म क्लासिफाई सब्सटेंस इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन एक्सटेंशन, दोज आर एक्सटेंडेड इन स्पेस एंड दोज दैट आर नॉट। ठीक है, इनमें अगर आप फर्दर इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर जैनिज्म एक्नॉलेज करता है एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सोल्स बट रिजेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल और अल्टीमेट सोल। देखिए, जो अगर आप जैनिज्म और बुद्धिज्म फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा ओवरलैप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसमें आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कंसेप्ट ऑफ सोल को आप देख सकते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म में जो है और कंसेप्ट ऑफ सोल, कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कर्मा, इस पे जो है आप थोड़ा सा कंट्रास्ट करके पढ़ा करिए बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि अगर क्वेश्चन कभी बनता है कि ये कंसेप्ट जो है जैनिज्म में क्या दिया हुआ है और ये कंसेप्ट बुद्धिज्म में क्या दिया हुआ है, तो आप डिफरेंशिएट कर पाए। ऐसे मतलब मैक्सिमम चीज जो है वो ओवरलैप करता है, बहुत सारे फिलॉसफीज ओवरलैप करते हैं, पर कुछ चीज जो है वो डिफरेंशिएट भी करता है बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको चीज याद रहेगा अच्छे से। ठीक है, now moving on to the next question, the Taras are considered the principal deities in the Vajrayana sect. The second statement is followers of Vajrayana believe that attaining magical power is the most effective means of achieving salvation. And third is Vajrayana gained significant popularity in southern India, specifically in Karnataka and Andhra Pradesh. आपको पता है वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि which of the following statements about Vajrayana is or are correct? Only one, only two, all of them are correct or none of them are correct. तो जल्दी से सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली टू। यहां पर जो ये थर्ड स्टेटमेंट है, वज्रयान गेन्ड सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी इन सदर्न इंडिया, नाउ दिस इज रॉन्ग। हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, लेकिन फर्स्ट वी विल कैटेगराइज द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज आल्सो अ L2 लेवल क्वेश्चन। L2 लेवल क्यों है? बिकॉज जो भी चीज बुद्धिज्म से रिलेटेड होता है, क्योंकि आप बुद्धिज्म को बहुत एम्फेसिस में पढ़ते हैं, आप बोल सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में, तो आप डिफरेंट सेक्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि हीनयान, महायान, थेरवादास जो थे, या वज्रयान जो था वो किस रीजन में बहुत ज्यादा जो है फ्लरिश किया, तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता रहता है। क्योंकि अगर हम लोग डिफिकल्टी की बात देखें तो इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है और आपको सिर्फ गेसिंग करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके एनसीईआरटीज में भी अवेलेबल है। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटीज भी पढ़ा है अबाउट बुद्धिज्म, तो उसमें भी वज्रयान सेक्ट के बारे में जो है और इंडिया में किस पार्ट में ये प्रिवेलेंट है ये बताया गया है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, वज्रयान इज ऑफन रेफर्ड एज द डायमंड व्हीकल और द थंडरबोल्ट व्हीकल due to its emphasis on swift and powerful methods for achieving enlightenment। मतलब ये जो है कि आपको क्या होता है कि इसमें आपका जो enlightenment होता है वो थोड़ा फास्टर होता है कंपेयर टू दी अदर हीनयान एंड महायान। ठीक है, हीनयान को कैसे बोला जाता है? लेसर व्हीकल, एंड महायान को क्या बोला जाता है? आपका जो है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसको जो है कौन सा व्हीकल बोला जाता है। वहीं वज्रयान को जो है दैट इज डायमंड व्हीकल। ठीक है, तो यहां पर जो है डिफरेंट, इट इज कंसिडर्ड मोर एसोटेरिक एंड मिस्टिकल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म कंपेयर टू दी अदर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। देखिए, आपको पता है इनिशियली जो बुद्धिज्म में जो सेक्ट डिवाइड हुआ आपका हीनयान एंड महायान, तो दे बिलीव्ड बेसिकली इन, आप बोल सकते हैं वर्शिप ऑफ क्या, रेलिक्स, स्तूपास, ठीक है, जो कि बेसिकली सिंबल्स थे ऑफ बुद्धिज्म। लेकिन जब वज्रयान डेवलप हुआ तो वज्रयान में बेसिकली दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप। यहां पर आइडल और आप बोल सकते हैं मिस्टिकल फॉर्म ऑफ आप जो बुद्धा का ह्यूमन फॉर्म देते हैं, दिस केम इन वज्रयान। ठीक है, तो वज्रयान में लोगों ने बुद्धिज्म को एज मतलब बुद्धा को एज अ गॉड ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले हम लोग जो उनके रेलिक्स थे उस पे वर्शिप करते थे, उनके जो मतलब उनके जो टीचिंग्स थे उसमें बिलीव करते थे, लेकिन वज्रयान जो है वो एक लेवल ऊपर जाके जो है उनको आइडल के जैसा वर्शिप करने लगा, उनको गॉड के जैसा वर्शिप करने लगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस भी आए, जैसे वज्रयान ने इनकॉर्पोरेट कर लिया एलिमेंट ऑफ तंत्रास एंड मंत्रास विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ रिचुअल्स, विजुअलाइजेशन एंड मंत्रास टू ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस इनटू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। देखिए, इनिशियली जो थे
आपको पता है बुद्धिज्म जो था बेसिकली सिर्फ टीचिंग था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें तंत्रास आने लगे, रिचुअल्स आने लगे कि आपको इस तरह से कुछ मतलब सर्टेन काइंड ऑफ ऑफरिंग्स करना, पूजा करना, ठीक है। तो इस तरह का जो है ये इनकॉर्पोरेट हो गया इन वज्रयान, और जो है ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को आपको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में टर्न कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे अगर आप इसमें, तो इसमें बहुत सारी डीटीज का भी जो है वो, जैसे तारा जो थी दैट वाज वन ऑफ द फेमस डीटी ऑफ वज्रयान सेक्ट, तो ये भी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, थोड़ा तंत्र मंत्र वाला ये बुद्धिज्म है, अगर आप बात करें बहुत बेसिक लैंग्वेज में कि व्हाट इज वज्रयान बुद्धिज्म, और इसमें जो है बुद्धा को जो है एज अ गॉड ट्रीट किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि ये जो है कहां पर जो है इसको सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट हुआ इंडिया में, तो तिब्बत, भूटान, नेपाल, बेसिकली आप बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में जो है आपका ये डेवलप हुआ। तो साउथ में जो है ये गलत है स्टेटमेंट कि साउथ में आपको देखने को मिलता है, तो ये जो है आपका बिल्कुल गलत है। अब आपको बताना है, ये आपके लिए मैं छोड़ा हूं कि साउथ में कौन सा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक है। आपको ये भी बताना है कि श्रीलंका में भी कौन सा बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा प्रिवेलेंट है। देखिए इस तरह के इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रहते हैं तो आप बहुत सारा क्वेश्चंस में ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द टर्म सरथावाहा विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स, ठीक है। द फर्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बी इज चीफ आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, सी हेड ऑफ द रॉयल काउंसिल एंड डी इज लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरावंस, ठीक है। तो आपको जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरावंस। नाउ दिस इज अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको पता है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर हम लोग बात करें तो विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन, इवन मिडीवल टाइम्स में मुगल के टाइम पे भी एडमिनिस्ट्रेशन या जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करते थे, इस पे यूपीएससी रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बना रही है। तो आपको क्या करना है, गुप्ता पीरियड जो इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं, गुप्ता पीरियड्स जो है आपका विजयनगर के टाइम्स में, फिर आपके जो मिडीवल में अगर आप आ जाए तो मुगल के टाइम पे, तो इस तरह के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थे, पोजीशंस थे, इसको आप जरूर अच्छे से पढ़िए क्योंकि इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को फ्यूचर में भी मिलेगा। नाउ हम लोग जानते हैं इसके बारे में, सरथावाहा के बारे में। तो ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द सरथावाहा हेल्ड द पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंट कैरावन ट्रेडर एंड द प्राइमरी ऑफ इसका ऑक्यूपेशन क्या था, वाज टू ट्रांसपोर्ट मर्चेंडाइज टू वेरियस लोकेशंस फॉर प्रॉफिटेबल सेल्स। बेसिकली जो थे दे वर ट्रेडर्स, ठीक है, और आप बोल सकते हैं जो है मर्चेंडाइज को कैरी करते थे डिफरेंट लोकेशन फॉर प्रॉफिटेबल सेल्स। इनका क्या था, दे आर वेल नोन टू सेल देयर गुड्स एट प्राइस सिग्निफिकेंटली हायर देन ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब जो नॉर्मल सेलर्स होते थे उसे ये थोड़ा डिफरेंट होते थे क्योंकि थोड़ा प्रीमियम मर्चेंडाइज प्रोडक्ट बेचते थे, तो इनका जो प्राइसेस था वो रिलेटिवली हायर रहता था। अब देखिए ये जो थे दे वर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग, तो जो किंग्स के साथ भी था उस समय के, जो गुप्ता पीरियड के जो किंग्स के भी साथ, इनका काफी कॉर्डियल रिलेशन था क्योंकि ऑब्वियसली जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अलायंस ऑफ पावर टाइप का चीज था उस समय, तो वो काफी अच्छा रिलेशन होल्ड करते थे ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा 5 क्वेश्चंस जिसमें आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिला होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे और हो सकता है कि कोई इसी क्वेश्चन में या किसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाए। तो आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखिए, एनसीईआरटीज पे फोकस करिए अच्छे से, उसके बाद कुछ नॉलेज एडिशन करिए। अगर आप कहीं पर अगर आप किसी टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, या फिर जैसे अभी आप इस सीरीज में ही अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है तो आप उसको आप अपने नोट्स में मेंशन कर लें कि लास्ट टाइम में अगर आप देख कर जाएं प्रीलिम्स में तो आपको स्ट्राइक कर जाए कि हाँ ये इंफॉर्मेशन मैंने कभी पढ़ा था। देखिए प्रीलिम्स के साथ क्या है कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि प्रीलिम जो है वो बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल स्प्रेड नॉलेज का चेक करता है, मतलब आपको कितने ज्यादा टॉपिक्स के बारे में पता है। वहीं मेंस की बात करें तो वो आपको किसी एक टॉपिक में आपको कितना पता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डेप्थ, ये चेक करता है। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड जब आपकी प्रीलिम्स चेक करता है तो उस केस में क्या है कि आपको जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा अबाउट डिफरेंट थिंग्स, आप उतना ज्यादा ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी कारण प्रीलिम्स के लिए आप जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपना नॉलेज आप ब्रॉड रखिए, बिकॉज ऑप्शंस आर आल्सो गेटिंग टफ। थोड़ा सा नॉलेज को ब्रॉड रखिए, बेसिक्स पे हमेशा फोकस करिए और अपने जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को। थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग का भी आपको जरूरत पड़ेगा। डिस्पाइट नोइंग आपको राइट आंसर, आपको जो है गेसिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आप 50% नॉलेज से ज्यादा आपको नहीं पता होता है। तो गेसिंग भी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स जो कि आपको सीखना पड़ेगा वाया सॉल्विंग दी क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।